So Bismillahirrahmanirrahim. Two main topics which we are going to discuss over here today. They include foraging decisions and decisions that when to eat and what to eat, और उसकी एनर्जी वैल्यू, एनर्जी कॉस्ट एनिमल के लिए क्या होगी जब वो एनिमल किसी स्पेसिफिक फूड मटेरियल पे फीड कर रहा होगा. सबसे पहला पॉइंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि foraging animals they can maximize their intake of energy by increasing food quality और quantity. दो बेसिक वेज हैं जिससे जो है वो एनर्जी इनटेक को इंक्रीज कर सकते हैं. या तो बेटर क्वालिटी का फूड इनटेक करें जिसमें कैलोरीज हाई हो. सेकंड, वो क्वांटिटी को बढ़ाकर भी इनटेक को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, इनटेक बढ़ा सकते हैं. Nutrient intake can be maximized in number of ways. For example, an animal could increase the total amount of food mass eaten, or it could select relatively high nutrient food. For example, that it could increase quantity or quality जो हमने बात की. For example, various species of herbivorous fish, plant-eating fishes होती हैं. They play an important ecological role throughout sublittoral zone of the water. ये भी zone areas भी मैं साथ डिस्कस कर देता हूँ इसके. But their effect is most obvious in coral seas, जहाँ पे coral reefs बनते हैं. It has been estimated that relatively small populations of herbivorous fishes, such as the trigger and butterfly fishes. ये butterfly fishes shown है यहाँ पे इस slide में भी, आपको यहाँ पे भी butterfly fishes नजर आ रही होंगी. These are herbivorous fishes. They are found in a variety of colors, variety of beautiful color patterns. और butterflies के साथ resemblance की वजह से इनके color pattern को, इस वजह से इनको butterfly fishes कहा जाता है. They may consume 50 to 100% of all the algal production on a coral reef. कि जितने भी एल्गी वहां पे प्रोड्यूस हो सकते हैं उसमें 50 से लेकर 100% यही कंज्यूम कर जाते हैं. thereby preventing the smoothing of the coral and thus preserving the reef. कि जब वो प्रिजर्व हो जाता है उससे रीफ मजीद आप कह लें कि अगर वो स्मूथ हो जाएगा तो उस पे जो नए कॉरल्स बिल्ट होने हैं वो उसके ऊपर स्टैब्लिश होने के बजाय स्लिप ऑफ कर जाएंगे, साइड पे गिर जाएंगे. तो रीफ की स्टैब्लिशमेंट को या उसको मेंटेन करने में भी इसका एक रोल जो है वो होता है. It is thought that each fish needs to consume large amount of material to maximize the energy intake because seaweed is relatively poor in nutrients. Plants है तो उसमें cellulosic material थोड़ा सा high है. So we might say that behavioral solution to the fish's problem of feeding on poor quality food is to simply eat more. कि अगर उसको फूड से न्यूट्रिएंट्स ही कम मिल रहे हैं तो उसका एक ही सोल्यूशन उनके पास है कि उसकी जो है वो क्वांटिटी इंक्रीज कर दें, क्वांटिटी ज्यादा कर दें. एक और एग्जांपल है, ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी इस साइड पे. ग्रीन टर्टल Chelonia maris या Chelonia maris faces a similar problem. Green turtles क्या करते हैं? They graze primarily on a sea grouse, Thalassia testudinium, which is highly productive, has a constant nutrient quality, and for which the turtles have few competitors. अब ये ग्रास भी शोन है साथ पे जो सी ग्रास की हम बात कर रहे हैं. It would seem therefore to be an ideal foodstuff कि उसको sufficiently खा भी रहे हैं, competitors भी इतने नहीं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है. इसमें भी सेलुलोजिक कंटेंट हाई है which makes it difficult to digest. उससे क्या होता है? Green turtles do have an extremely efficient digestive system, but cellulose digestion is slow and so a meal has long gut residence time. कि मील वहां पे एक लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करेगा गट के अंदर. फिर आपको पता है वैसे भी स्लो मूविंग है, इनका जो लाइफस्टाइल बड़ा पैसिव सा स्लो सा है, तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जा रही है कि जैसे फूड ले रहे होते हैं बड़ा स्लोली डाइजेस्ट होती है. मीन उसमें भी जो है वो कम कैलोरीज इनको मिलेंगी. दिस मीन दैट whereas butterfly fishes can simply eat more seaweed to maximize their nutrient intake, turtles cannot use the same strategy. It seems likely that the turtles grazing behavior provides a solution to their problem. अब वो तो इतना ज्यादा जो है वो फीड नहीं कर रहे होते कॉन्स्टेंटली या ज्यादा इनटेक नहीं कर रहे होते, दे आर ऑलरेडी स्लो. तो उसका हल उन्होंने क्या निकाला हुआ है? ग्रीन टर्टल्स, वो जो फ्रेश आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन टर्टल फीड कर रहे हैं एक लॉन्गर ग्रास के बजाय एक न्यूली ग्रोइंग ग्रास के ऊपर. जो यंग सीडलिंग्स ग्रास के बन रहे होंगे, जो यंग जो है वो प्लांट्स उसके ग्रो कर रहे होंगे, उसके ऊपर वो फीड करना प्रेफर करेंगे. इससे क्या फायदा होगा भी? इससे ये फायदा होगा कि जो अडल्ट फुली ग्रोन प्लांट है उस फुली ग्रोन प्लांट के अंदर आप देखिएगा
कि सेलुलोजिक कंटेंट हाई है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। लेकिन जो न्यूली ग्रोइंग प्लांट है उसके अंदर ये जो यंग प्लांट जो वो फीड कर रहे हैं उसके अंदर जो है वो सेलुलोज की बजाय दूसरे कंटेंट्स भी हाई मिलेंगे। यानी उन्होंने क्वांटिटी बेहतर नहीं बनाई, उन्होंने किस चीज को बेहतर बना लिया, क्वालिटी को बेहतर बना लिया। और इसलिए ये जो ग्रीन टर्टल्स हैं, ये जो सी ग्रास का जो है वो एरिया होगा उसमें से सारी ग्रास के ऊपर फीड नहीं करेंगे। इन्होंने स्पेसिफिक एरियाज बनाए होते हैं जहां पे ये बार बार रिटर्न करते हैं फीडिंग के लिए। मींस उसमें स्पेसिफिक पार्ट जहां पे यंगर प्लांट्स के पार्ट्स मौजूद होंगे उसी के ऊपर ये फीड करेंगे, सो दैट दे मे गेट हाई कैलोरी डाइट, हाई जो है वो क्वालिटी फूड स्टफ मिल जाए। तो बटरफ्लाई की स्ट्रेटेजी क्या थी? टू गेट मोर फूड, बटरफ्लाई फिश स्पीशीज की, टू गेट मोर क्वांटिटी ऑफ दैट एल्जी। और ग्रीन टर्टल की स्ट्रेटेजी क्या है? दे हैव इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ फूड इनटेक। तो इस तरह से एनिमल्स अपनी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है उनके लिए डिसीजन करते हैं और उसके जो है वो अलॉन्ग उसको बेहतर बनाते हैं। द फिश एंड द टर्टल जो हमने एग्जांपल्स अभी डिस्कस की, both face the same problem, but their solutions are very different and depend in part upon their physiological conditions as well as their ecological behavior. Within a species or population, alternative behavioral strategies, they are also common and they may exist. Investigating the underlying factors that explain the situation often leads to a greater understanding of the behavior itself. कि different species में तो difference नजर आ रही है, लेकिन बाजू का सेम स्पीशी के मेंबर्स में भी डिफरेंस नजर आता है। गैलापागोस फिंचेस हमने जो डार्विन के हवाले से डिस्कस की थी, उन्होंने भी एक ट्री के अंदर अपने जो है वो एरिया को स्पेसिफाई कर लिया था कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए। इस तरह दूसरे बहुत से एनिमल्स में भी विद इन द सेम स्पीशी भी डाइटरी प्रेफरेंसेस वेरी कर सकती हैं टू रिड्यूस द कंपटीशन एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ देयर इनटेक। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और वहां पे कितना कंपटीशन है, फूड सोर्सेज किस तरह के अवेलेबल है। एक मैरीन इग्वाना यहाँ पे आपको शोन है, ये मैं पिक्चर अगर इसको मिनिमाइज करके दिखा सकूं, ये लुक एट दिस, ये आपको मैरीन इग्वाना नजर आ रहे होंगे यहाँ पे पिक्चर में। दे आर लिविंग इन मैरीन कंडीशंस और इस पे रिसर्च की गई फ्रिट्ज ट्रिलमिच साइंटिस्ट का नाम है, उसके को-वर्कर्स। They have described two foraging strategies used by the iguana in their study population. कि फूड फाइंडिंग के लिए, फूड इनटेक करने के लिए दो तरह की स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे होते हैं। नंबर वन, some animals do swim to feed subtidally, but others are exclusively intertidal. अभी intertidal zone कौन सा होता है और subtidal zone कौन सा होता है? Just look at this picture please. ये जो ऊपर साइड पे आपको पिक्चर नजर आ रही है जिसमें साथ ही जो मेरी इग्वाना भी शोन है, सुपर टाइडल जोन जो आउटर साइड पे वाटर के अंदर, इंटरटाइडल जोन नियर शोर जोन, लिटोरल जोन भी जिसे हम कहते हैं, और उसके इनर साइड पे उसके जो आगे जोन होगा सब टाइडल, इंटरटाइडल के बाद दैट इज सब टाइडल जोन। ये पिक्चर में आपको शोन है, ये ओशन के डिफरेंट जो पार्ट्स में इसको आप मार्क कर सकते हैं। फिर बेटा इस पिक्चर में भी देखिएगा, यहाँ पे भी आपको क्लियर होगा, ये है हमारे पास इंटरटाइडल जोन। इसमें एक और चीज नोट कीजिएगा इस पिक्चर के अंदर, सुप्राटाइडल और फिर सबटाइडल। दैट इंटरटाइडल जोन इज हैविंग रिच ग्रास स्पीशीज, यहाँ पे ग्रास या वेजिटेशन आपको ज्यादा नजर आ रही है, जबकि दूसरी तरफ जो है सबटाइडल जोन में ऐसा इस तरह की ग्रासेस मौजूद नहीं है। So we were discussing about कि एनिमल्स जो है वो इग्वाना दो तरह की स्ट्रेटेजीज अडैप्ट करते हैं। Some animals do swim to the feed subtidally, but others they are exclusively intertidal. बाकी जो है वो intertidal feeding ही शो कर रहे होते हैं। Their observations, अभी जो एक्सपेरिमेंट किए गए इनके हवाले से, their observations with reference to movement of these animals to different areas, there is a clear advantage that it is subtidal जो है, अब देख रहे हैं यहाँ पे subtidal जो हमारे पास environment है, not dependent upon either the tidal cycle or good weather। यहाँ पे हर conditions में जो vegetation है lower side पे वो मौजूद रहेगी, जबकि intertidal foraging is not possible at high tide or when the sea is rough। हाई टाइड के ऊपर जाहिर है वो इंटरटाइडल में जो फीड कर रहे हैं वो वाटर के अंदर एरिया चला जाएगा, ये वाला, ये देखिए ये एरिया, फिर वहां पे फीडिंग पॉसिबल नहीं होगी। फॉर अ रेप्टाइल
सारे ये reptilian members हैं iguana, the constraints of the tide present difficulties to an intertidal animal which has to limit its exposure to seawater to prevent cooling the sea around the Galapagos Islands. If the tide is low shortly before dark, a feeding animal may be chilled by wave splash, but then not have sufficient daylight to reheat itself before nightfall. मतलब उसमें फिर उसको टेम्परेचर रेगुलेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी कि वो वाटर में मूव कर रहे हैं, दे आर नॉट यूज्ड टू मूव ओवर देयर. तो इसलिए इंटरटाइडल जोन में और सब टाइडल में जो फीड करने वाले एनिमल्स हैं उनकी स्ट्रेटेजीज के साथ साथ उनको जो फेस हो रही है प्रॉब्लम्स वो भी वेरी करेंगी. सब टाइडल फॉरेजर्स क्या करेंगे, डू नॉट फेस द सेम प्रॉब्लम and are able to concentrate their foraging during the late morning and around noon, thereby allowing time to reheat themselves. वो जो पानी के अंदर पहले ही जाने के आदी हैं, वो पहले ही वहां पे जाके फीड कर रहे हैं, तो वो इस टाइम पे फीड कर सकेंगे जहां पे वो जिस टाइम के बाद वो अपने टेम्परेचर को सन बाथिंग के थ्रू रीगेन कर सकें, तो उनको ये प्रॉब्लम्स का सामना नहीं होगा. When why then do any animals forage intertidally? फिर intertidal zone में वो feed क्यों कर रहे हैं animals जो करते हैं अगर उनको ये problems का सामना है? Two size specific constraints appear to limit the size at which an animal can switch to a subtidal strategy. Firstly, smaller animals cool more rapidly, तो वो आसानी से वहां पे अगर जाएंगे वापस आके जब वो warm up भी हो जाएंगे, then larger animals, and they would therefore be restricted to shorter foraging trips. Research has confirmed that the animals have lower body temperature threshold that act as their cue to leave the water. Secondly, iguanas are actually relatively poor swimmers, and small animals are the poorest swimmers of all. The longer time taken for a small animal to reach food coupled with the fact that it has to return to reheat quickly probably restricts it to an intertidal life. तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो इनको लिमिट करेंगी. फिर इसी को हम ऑप्टिमल फॉरेजिंग के साथ भी रिलेट करेंगे कि ऑप्टिमल फॉरेजिंग क्या है. एनिमल्स विच बिहेव ऑप्टिमली बैलेंस एंड द कॉस्ट ऑफ फॉरेजिंग अगेंस्ट इट्स बेनिफिट्स, वो किस तरह से जो है उसके इन्फ्लुएंस कर रहा होता है. फर्स्ट पोर्शन था, इसमें हमने ये डिस्कस किया दैट एनिमल्स दे मेक सर्टेन डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर एडेप्टेशंस and they make certain decision that when and what to eat according to their physiological as well as ecological conditions.